محمد وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا محمد رسول اللہ۔ لا ریب شہید کو موت نہیں، لا ریب شہید کو موت نہیں، وہ مر کر زندہ رہتا ہے۔ لا ریب شہید کو موت نہیں، وہ مر کر زندہ رہتا ہے۔ کسی انسان کا یہ قول نہیں، میرا رب خود یہ کہتا ہے۔ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی۔ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی۔ اپنی پیشانی کو سجدوں سے محروم نہ رکھ اقبال، اپنی پیشانی کو سجدوں سے محروم نہ رکھ اقبال، بڑی قیمت چکائی ہے حسین ابن علی نے۔ بعد حمد و صلات، گرامی قدر آج کی رات 10 محرم الحرام کی رات ہے، اور 10 محرم الحرام کے دن کو نہایت ہی المناک اور دردناک واقعہ رونما ہوا، جس واقعے کو واقعہ کربلا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس واقعہ کربلا کے جو محرکات اور اسباب اور پس منظر ہیں، بس ان پر توجہ چاہوں گا۔ گزشتہ خطبے کے اندر واقعہ کربلا کی ابتدا ہو گئی تھی، لیکن آج میں نے آپ کے سامنے اس واقعہ کربلا کے اسباب رکھنے ہیں کہ آخر کیا وجوہات تھیں، کیا اسباب تھے، کیا معاملات تھے کہ یہ جو واقعہ کربلا ہوا کس بنا پر ہوا۔ کوئی ذاتی اختلاف تھا یا کوئی نظریات کے اختلاف تھا؟ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنے تمام تر نفوس قدسیہ اور اپنی جان کا نذرانہ اللہ کی بارگاہ میں پیش فرمایا۔ اس کے اسباب کیا تھے؟ اس واقعہ کربلا کے پیچھے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے جو اسباب تھے وہ 3 تھے۔ اسلام کی حفاظت، قرآن کی حفاظت، نماز کی حفاظت، یہ 3 چیزیں تھیں۔ آج پوری دنیا کے اندر جب بھی محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے تو لوگ اس مہینے کے اندر بڑا ادب و احترام کرتے ہیں اور اپنے حسینی ہونے کا اعلان بھی کرتے ہیں۔ نظریے 2 تھے سن 61 ہجری کے اندر، ایک نظریہ جو قرآن کی مخالفت میں تھا، ایک نظریہ جو قرآن کی حمایت اور قرآن کی حفاظت میں تھا۔ جو قرآن کا مخالف نظریہ تھا اس نظریے کا نام ہے یزیدی نظریہ، اور جو قرآن اور اسلام اور محمد کے فرمان کے فرمین کے مطابق نظریہ تھا اس نظریے کا نام ہے حسینی نظریہ۔ آج ہم نے غور و فکر اس بات پر کرنی ہے کہ حسین ابن علی نے جس اسلام کی خاطر اپنا پورا گھر قربان کر دیا، کیا مسلمان اس نظریے پر آج قائم ہیں کہ نہیں ہیں؟
ला इलाहा तो पढ़ लिया, अब मजालो तासीर का, यानी ला इलाहा पढ़ लेना, ला इलाहा पढ़ लिया, इस्लाम के अंदर दाखिल हो गए, लेकिन इस्लाम में दाखिल होकर ईमान की तकमील कैसे होगी? ला इलाहा तो पढ़ लिया, अब मजालो तासीर का, ला इलाहा की तह के नीचे खून है शब्बीर का। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कुरान, इस्लाम और नमाज की हिफाजत के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। क्या यजीद मुसलमान नहीं था? जवाब आता मुसलमान था। क्या यजीद कुरान नहीं जानता था? जवाब आता कुरान जानता नहीं, बल्कि वो तो कारी कुरान था। सवाल ये पैदा होता है क्या यजीद को इस्लाम का नहीं पता था? जवाब आता वो आलिम था। आखिर वजह क्या थी कि उसका किरदार, उसका अफआल और उसका जो बैकग्राउंड था वो इस्लाम की मुखालफत में था। इस बिना पर, क्योंकि उसका किरदार जो था वो हर बुरा काम करता था, तो इमाम अली मकाम ने फरमाया बात यह है कि हमने नाना के दीन को बचाना है और नाना की उम्मत तक इस्लाम को और कुरान को इसी अंदाज में पहुंचाना है। फिर पैगाम आता है कि ए हुसैन इब्ने अली, अगर बायत नहीं होगी तो फिर जान चली जाएगी। आपने फरमाया जान जाए तो जाए, मगर मोहम्मद मुस्तफा का फरमान और कुरान ना जाए। जान जाए तो जाए, मगर मोहम्मद मुस्तफा का फरमान और कुरान ना जाए। बस इसी बात को लेकर बात मैदान करबला तक जा पहुंची। मैदान करबला में हम जाएंगे, लेकिन इससे पहले कुरान और हदीस से पूछते हैं और मेरे आका के तरीके से पूछते हैं कि हुजूर के शहजादों का क्या मकाम है। बस बुनियाद में ये बात समझ लें, उसके बाद देखना है कि कलमा पढ़ने वालों ने किस तरह अहले बैत अतार पर मजालिम ढाए। बेनियाज रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। ऐ महबूबा फरमा दीजिए, ऐ मेरे गुलामों, ऐ मेरे कलमा पढ़ने वालों, मैंने तुम्हें इस्लाम दिया, कुरान दिया, मोहम्मद का फरमान दिया, तुम्हें मैंने अक्ल शऊर दिया। ऐ महबूब आप अपनी उम्मत को फरमा दीजिए कि मैं तुमसे कोई बात नहीं मांगता, कोई अजर नहीं मांगता, कोई मुतालबा नहीं करता। मेरे आका की पूरी जिंदगी जो मक्की है या मदनी है, आप जरा मुतालिया करें। सफरे ताइफा पढ़ नहीं सकोगे, सुन नहीं सकोगे। इस उम्मत की खातिर मेरे आका ने क्या क्या नहीं किया। मेरे आका ने इस्लाम के जब पैगामात पहुंचाए, ये काफिर मेरे आका की जानों के दुश्मन बन गए, मेरे आका के दुश्मन बन गए। मेरे आका को हिजरत पर मजबूर किया गया। एक ऐसा सफर है कि मेरे आका जख्मी है, लौलुहार है। हजरत जिब्रील अमीन रसूलुल्लाह की बारगाह में आकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं आपकी मदद के लिए आ गया हूँ। आपका फरमान मैं इन जालिमों को नहीं सुना बोध कर दूंगा। इमाम अल-अंबिया ने फरमाया जिब्रील, मैं तवक्को रखता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि ये कलमा पढ़ेंगे, ये इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाएंगे। अल्लाह ने मुझे रहमत लिल आलमीन बनाकर भेजा है। इमाम अल-अंबिया खंदक खोद रहे हैं, जंगों में जा रहे हैं। आखिर क्या वजह है? मेरे आका मैदान में जाकर इस्लाम फैला रहे हैं, अल्लाह का कुरान बचा रहे हैं। इमाम अल-अंबिया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, ऐ मेरे अल्लाह, ये मेरी उम्मत है, गुनाहगार है, सियाकार है, बदकिरदार है। इससे पहले जितनी कौमें आई हैं गुनाह करती थी, शक्लें बदल जाती थी। या अल्लाह मेहरबानी फरमाना, मेरी उम्मत गुनाहगार बहुत है, सियाकार बहुत है, लेकिन इनकी गिरफ्त ना फरमाना, इनकी शक्लों को तब्दील ना फरमाना। अल्लाह करीम ने फरमाया, ऐ प्यारे,
میں آپ کی امت کی गुनाहगारी को नहीं देखूंगा, मैं तो मोहम्मद की यारी को देखूंगा। यह भी बुनियादी बात है में रखना। नबी रहमत ने फरमाया उम्मत मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, लेकिन एक चीज का मुतालबा है, मेरी जो औलाद आएगी ना, मेरे जो करापतदार आएंगे, मेरे जो अहल आएंगे, मेरे जो अहले बैत अतहार आएंगे, बस मैं तुमसे एक ही चीज का हुक्म देता हूं, एक ही चीज का मुतालबा करता हूं कि उनसे प्यार करना, उनसे मोहब्बत करना। एक होती है मोहब्बत, एक होती है मवद्दत। फरमाया मोहब्बत तो फिर भी तराजू में तोला जा सकता है, लेकिन मवद्दत वो होती है जिसकी ना कोई कीमत होती है, ना कोई तराजू होता है। फरमाया दुनिया में जिससे मोहब्बत करना, जितना दिल करे करना, लेकिन जो मेरी औलाद की मोहब्बत है, फरमाया किसी तराजू में भी नहीं तोलना। या रसूलुल्लाह कितनी मोहब्बत करनी है, और रसूलुल्लाह ने फिर करके दिखाई। आप जरा आओ ना, रसूलुल्लाह ने किस तरह मोहब्बत की और किस तरह उम्मत को दिखाया। इमाम अल-अंबिया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कलमा पढ़ने वालों जरा तवज्जो फरमाओ। जब इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बड़े भाई इमाम हसन अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई, आपकी विलादत में करीमा का की बारगाह में पैगाम पहुंचाया गया, या रसूलुल्लाह मुबारक हो, अल्लाह ने आपकी शहजादी को शहजादा अता फरमाया है। इमामुल अंबिया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत हसन अलैहिस्सलाम को उठाया, आपने बोसा फरमाया और सीने से लगाया, आपने कान में एक हुक्म इरशाद फरमाया। वो हुक्म क्या था? वो थी अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, यानी अज़ान। फ़अज़्ज़न अल-हसन, नबी रहमत इमाम अल-अंबिया ने हजरत हसन अलैहिस्सलाम के कान में खुद अज़ान दी। अच्छा, इमाम हसन अलैहिस्सलाम कैसे थे? अशबाहुम बिरसूलिल्लाह, कि इनकी जो तस्वीर थी, इनकी जो सूरत थी, इनका जो चेहरा था ना, ये हूबहू मेरे मुस्तफा के चेहरे की तरह था। अच्छा, साहबा इकराम को जब मेरे आका की याद आती थी ना, वो जाते थे याद फैलाने के लिए, मोहब्बत फैलाने के लिए, अपनी यादों को ताजा करने के लिए इमाम हसन इस्लाम का चेहरा देखते, और साहबा कहते क्या देखते हो? कहते हैं कि यारो हमें हसन के चेहरे में मुस्तफा का चेहरा नजर आता है। कहते हैं इसलिए हम इमाम हसन इस्लाम का चेहरा तकते हैं, नबी रहमत का चेहरा जो इनके चेहरे में नजर आ जाता है। ये तो थे ना इमाम हसन इस्लाम। अब आओ इमाम हुसैन इस्लाम, चेहरे से लेकर नाफ तक मेरे मुस्तफा की शफाअत इमाम हसन इस्लाम के अंदर थी, और नाफ से लेकर नीचे तक मेरे मुस्तफा की जो तशबीह थी वो इमाम हुसैन इस्लाम के अंदर थी। अब दोनों शहजादे, अब आओ ना, मैंने कहा ना कुरान में नबी रहमत ने फरमाया कि मैंने तुमसे मोहब्बत तलब की है। आप जरा देखो रसूलुल्लाह ने मोहब्बत किस तरह की और अपनी उम्मत को क्या दर्द दिया। अल्लाह अल्लाह इमाम अल-अंबिया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत देखिए। जब नबी रहमत ने फरमाया कि कुछ नहीं मांगता, अल्लाह ने मेरी औलाद की मोहब्बत को तुम पर फर्ज कर दिया। सहाबा पूछने के लिए जाते हैं, मन हाउलाइल्लज़ीना क़द वुजिबत अलैना मुहब्बतुकुम या रसूल अल्लाह। अर्ज करते हैं सोने आप, ये किन की मोहब्बत अल्लाह ने हम पर फर्ज की है? मेरे नबी ने नाम ले लेकर बताया, फरमाया वो अली हैं, वो फातिमा ज़हरा हैं, वो मेरे हसन हैं, मेरे हुसैन हैं। मेरे नबी ने फरमाया इनसे मोहब्बत करना फर्ज है, इनसे मोहब्बत करना ईमान है, इनसे मोहब्बत करना मुझसे मोहब्बत करना है। जो मुझसे मोहब्बत करते हैं अल्लाह उनसे मोहब्बत फरमाता है। अब थोड़ा सा मैदान करबला की तरफ चले, याद है ना करबला का वाकया, कहें सुभान अल्लाह। हुसैन बने अली तेरा जमाना याद है, जरा सुभान अल्लाह तो कह दें।
حسینی سبحان اللہ کہہ دیں، گج بج کے کہہ دیں حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، حضرت اصغر کا وہ تیر کھانا گود میں اور نہر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے۔ جو حسینی کہہ دے سبحان اللہ۔ اور نہر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے۔ امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے لوگوں، اللہ نے میرے اولاد کی محبت تم پر فرض کر دیا۔ اب میرے آقا مسجد نبی کے اندر موجود ہے، سرکار نماز ادا فرما رہے ہیں۔ پتہ چلا کہ میرے آقا کی آنکھوں کی جو ٹھنڈک ہے وہ نماز ہے۔ میرے آقا نماز ادا فرما رہے ہیں، آپ سجدے میں جاتے ہیں، حضرت امام علی مقام اپنے نانا جان کے کندھوں پر سوار ہو جاتے ہیں۔ اب آؤ ذرا مسئلہ سنو کہ میرے آقا سجدے میں، میرے آقا کے پیارے نواسے حسین میرے آقا پر سوار ہو گئے ہیں۔ اب دیکھنے والے کہتے ہیں کہ سواری کتنی اچھی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اے میرے غلاموں، سواری اچھی ہے، یہ تو دیکھو سوار کتنا اعلیٰ ہے، وہ کتنا بالا ہے۔ تو حسین ابن علی میرے آقا کے کندھوں پر سوار ہوتے ہیں۔ یہ نبی کی محبت ہے۔ اب اللہ کی محبت دیکھو، میرے رب نے فرمایا اے محمد، اے میرے پیارے، آپ کے کندھوں پر آپ کا نواسا جو سوار ہے، اپنے سجدے کو لمبا فرما دیجئے۔ پتہ یہ چلا کہ جس طرح میرے محمد حسین ابن علی سے پیار فرماتے ہیں، اسی طرح میرا اللہ بھی پیار فرماتا ہے۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ یہ آپ کے میرے پیارے نبی کی محبت کا معیار ہے۔ اب حدیث نمبر 2 سماعت فرمائیے۔ میرے آقا اپنی مسجد کے اندر منبر پہ بیٹھے ہیں، منبر پہ بیٹھ کے تقریر فرما رہے ہیں، منبر پہ بیٹھ کے صحابہ کو درس فرما رہے ہیں، منبر پہ بیٹھ کے صحابہ کو کچھ فرما رہے ہیں۔ سامنے دیکھا کہ 2 شہزادے، ایک کا نام حسن ہے، ایک کا نام حسین ہے، اپنی اماں جان سے اجازت لے کر آ رہے ہیں کہ پیاری اماں جان، ہم نے نانا کے پاس جانا ہے۔ یہ نواسوں کی محبت کا عالم ہے کہ نانا کو ملنے کے لیے مسجد کے اندر آ گئے ہیں۔ اوے مسلمانوں غور فرماؤ کہ جو بیٹی کی اولاد ہوتی ہے وہ بڑی پیاری ہوتی ہے، بڑی محبوب ہوتی ہے۔ میرے آقا منبر پہ جلوہ گر ہیں، نواسوں کی محبت کا یہ عالم ہے، لڑکھڑاتے ہوئے کبھی گرتے ہیں، کبھی اٹھتے ہیں، کبھی بیٹھتے ہیں، کبھی چلتے ہیں۔ آپ آ گئے، میرے آقا منبر پہ بیٹھ کے اپنے غلاموں کو ارشادات فرما رہے ہیں۔ سامنے دیکھا کہ حسن و حسین آ رہے ہیں۔ پہلے نمبر پر بات یہ کہ میرے آقا اپنے منبر سے اترتے ہیں، اپنے حسنین کریمین کو بوسا فرماتے ہیں، اور سینے سے لگاتے ہیں، اپنی گودی میں بٹھاتے ہیں۔ یہ نبی رحمت کی محبت کا عالم ہے کہ جن کے لیے آپ نے سجدہ لمبا کیا، جن کے لیے آپ منبر سے اترے، ان کو اٹھایا، سینے سے لگایا۔ اب آؤ ایک اور محبت نہ سنا دو، محبت سنا کے پھر ظالموں کو ظلم سناؤں گا آپ کو۔ ذرا سبحان اللہ سنا دیں۔ امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوا، آپ نے دیکھا کہ محلے میں چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں۔ قریشوں کے بچے اعلیٰ لباس پہنے ہوئے، اعلیٰ کپڑے پہنے ہوئے ہیں،
और एक को अपनी कौम पर फख्र है, अपने नस्ब पर फख्र है, अपने खानदान पर फख्र है। उन्हीं बच्चों के अंदर एक ऐसा बच्चा खड़ा हुआ था कि इमाम अल-अंबिया ने देखा कि लिबास पुराना है, हालात खस्ता है, कपड़े फटे हुए हैं, पेशानी पर परेशानी है, लेकिन जो परेशान होता है नबी परेशानी को दूर फरमा देते हैं। जो लावासा होता है उसके नबी वारिस बन जाते हैं। जो यतीम होते हैं मेरे आका उनके सर पे हाथ रखते हैं। जो लावारिस और मिस्कीन होते हैं सरकार फरमाते हैं कि मैं वारिस हूँ, मैं तुम्हारा मालिक हूँ। मेरे आका ने देखा कि हालात बड़े खस्ते हैं, कपड़े बड़े फटे पुराने हुए हैं। इमाम अल-अंबिया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसी के पास जाते हैं। आप उसकी उंगली को पकड़कर उसको सीने से लगाते हैं, पेशानी पे बोसा फरमाते हैं। कितना खुश नसीब होगा वो बच्चा कि जिसको नबी अलाम अपने सीने से लगाया। कितनी सादत की बात है, पेशानी को चूमा। साहब हैरान है कि सोनिया इतने आला नस्ब के लोग खड़े हैं, बड़ी बड़ी कौमों के बच्चे खड़े हैं। और दोनों ने फरमाया तुम्हें नहीं पता ये बड़े होंगे, अपने घर के बड़े होंगे। और फरमाया जो जन्नत में मेरे हसनैन करीमैन के कदमों में होगा वो ये बच्चा होगा। कहते हैं हुजूर वजह क्या, इसको ये मकाम रुतबा कैसे मिला, ये समझना है। इमाम अल-अंबिया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सीने से लगाया। हैरानी के बात नबी के गुलाम पूछते हैं सोनिया क्या वजह है। मेरे आका ने फरमाया ये मेरे हसनैन करीमैन के साथ खेलता है, बाकी सारे बच्चे खेल में मसरूफ रहते हैं, लेकिन मैंने इस बच्चे को देखा है कि इसकी ये कदम मुझे बड़ी पसंद आई है। मैं मोहम्मद को भी पसंद है, मेरे रब को भी पसंद आई है। या रसूल अल्लाह वो कौन सी अदा है। मेरे करीम आका ने फरमाया मेरे हुसैन के, मेरे हसनैन करीमैन के जहां कदम लगते हैं ये कदमों वाली जगह को चूम लेता है। कदम लगते हैं, कदमों को नहीं, जिस जगह पर मेरे हसनैन करीमैन के कदम लगते हैं ये उन जगहों को चूमता है। या रसूल अल्लाह फिर इसका इतना मजार। आपने फरमाया ये तो इसका मजार है। और सुनो, इमाम अल-अंबिया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इसकी इस अदा को मैंने बड़ा पसंद किया। कल कयामत के दिन मेरे हसनैन करीमैन की मोहब्बत की वजह से अल्लाह इसको जन्नत में दाखिल फरमाएगा। या रसूल अल्लाह इसके तो बेड़े पार हो गए। मेरे आका ने फरमाया अकेला जन्नत में नहीं जाएगा, खुद भी जाएगा, वालिदैन को भी जन्नती ही बनाएगा। कह दीजिए सुभान अल्लाह। अब मैदान करबला में चलते हैं। करबला का मकान सजा हुआ है। इब्ने मुर्तजा ने खुतबा दिया और आपने ललकार कर क्या फरमाया, बखुदा देखिए। इब्ने मुर्तजा ने कहा सुन शिमर जफा वाले, नाना है नबी अपना, नाना है नबी अपना। जरा गज कर कह दीजिए सुभान अल्लाह। मैदान करबला का तसव्वुर कीजिए। 6 माह का अली असगर है, अली अकबर भी मौजूद है, हजरत कासिम भी मौजूद हैं, बीबी सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी मौजूद हैं। बड़े बड़े शेर, बड़े बड़े बहादुरों का हौसला तोड़ दिया जाता है, बड़े बड़ों की बादियां खत्म हो जाती हैं, लेकिन साल में जालिम खड़े हैं, साल सामने जालिम का जुल्म नजर आ रहा है। लेकिन ख़वातीन इस्लाम अहले बैत ने भी सब्र का मुजाहरा किया। मेरे नबी की औलाद में अली अकबर ने भी सब्र का मुजाहरा किया और अली असगर ने भी सब्र का मुजाहरा फरमाया। इमाम अली मकाम ने क्या ललकारा। इब्ने मुर्तजा ने कहा सुन शिमर जफा वाले, नाना है नबी अपना,
अपना अपना नाना है नबी अपना, हम हैं करबला वाले, हम हैं मुर्तजा वाले, हम हैं मुस्तफा वाले, हम हैं मुर्तजा वाले, सैयदुल वरा वाले। अल्लाहु अकबर। मैदान करबला का ये नक्शा आपकी आंखों के सामने होना चाहिए कि 6 मुहर्रमुल हराम को ये पानी बंद कर दिया गया, खाना बंद कर दिया गया। यजीदी फौज ने किया, खाना बंद, पानी बंद। अच्छा, रिवायात में तो खाली पानी का नाम आता है ना, खाना भी बंद था। अच्छा, वो ये समझ रहा था कि भूखे और प्यासे होकर मेरे दर पर आएंगे। उस लाइन को ये क्या खबर थी कि जिन्होंने जिंदगी की भीख नहीं मांगी वो खाने की भीख मांगेंगे। हुसैन इब्न अली ने फरमाया कि ये तो एक जान है, मैं सारे खानदान को कुर्बान कर दूंगा मगर कुरान पर भी आंच नहीं आने दूंगा, नाना के फरमान पर भी आंच नहीं आने दूंगा। ये हुसैन इब्न अली का नारा था। वहां पर पानी बंद हो गया। इमाम अली मकाम ने वहां पर जो खुतबा दिया ना, उस खुतबे के चंद नुकात आप समाअत फरमाएं। चंद नुकात के बाद फिर हम जालिमों के जुल्म की तरफ आएंगे। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने देखा यजीद की तरफ से नकारे बज गए। यजीद ये कहता कि कौन है जो हमारे मुकाबले में आए। इमाम अली मकाम अभी खुतबा दे रहे ताकि कयामत के दिन कोई बहाना ना बना सके, कयामत के दिन ये ना कह सके ये हमें पता नहीं था। मेरे आका ने फरमाया कि मैं फातिमा का बेटा, मैं हैदर करार का बेटा, मेरे नाना इमामुल अंबिया है, मेरे बाबा शेर खुदा है। और यजीद की तरफ से ये कहा जा रहा है, ये ऐलान किए जा रहे हैं कि इमाम हुसैन ये बगावत करके जा रहे हैं। माअज़ल्लाह माअज़ल्लाह। यजीदी ये कह रहे हैं कि ये बागी हैं। मेरे हुसैन फरमा रहे हैं कि ऐ मेरे नाना के कलमा पढ़ने वालों, मैं बागी नहीं हूं, मैं तो नमाजी हूं। जरा कह दीजिए सुभान अल्लाह। इमाम अली मकाम ने फरमाया मैं बागी नहीं हूं, मैं तो हाजी हूं। अब यजीद की फौज ने जब नकारा बजाया, इमाम अली मकाम ने इत्माम हुज्जत के लिए खुतबा इरशाद फरमाया सुनो, मैं उस नबी का नवासा हूं, उस नाना का नवासा हूं जिसका तुम कलमा पढ़ते हो, जिस पर कुरान नाज़िल किया गया। मैं वो हुसैन इब्ने अली हूं जिनकी खातिर नाना जान ने सजदा लंबा फरमाया। मैं वो हुसैन इब्ने अली हूं जिनकी खातिर हमारे नाना ने मिंबर से उतर के हमारा इस्तिकबाल फरमाया। हुसैन इब्ने अली जा रहे हैं, आपके तमाम तर नौजवान, तमाम तर साथी। ये यजीद लईन जवान था, 18 साल की उम्र वाला था, लेकिन इसके मुकाबले में हज़रत अली अकबर, अली औसत, अली असगर ये भी नौजवान हैं। मेरे आका ने 1500 साल पहले बशारतें दे दी थी। आपने फरमाया कि तअव्वज़ू बिल्लाहि बिरासी सबईन। आपने फरमाया 70 की दहाई से पनाह मांगना। 70 की दहाई का मतलब यह है कि जब 60 के बाद वाला ये दहाई शुरू होगी, 60 के बाद 61, 62, 63, आपने फरमाया पनाह मांगना अल्लाह के। ये मेरे आका की हदीस से पाक, किताब का नाम है मुस्नद अहमद बिन हंबल, इसकी जिल्द नंबर 2 है, सफ़ा नंबर 326, हदीस नंबर 8301। कह दीजिए सुभान अल्लाह। हवाला नंबर 2 सुनिए। आपको पता है कि बात गलत हो, हवाला गलत हो, मैं जिम्मेदार हूं, कह दीजिए सुभान अल्लाह। किताब का नाम है मुसन्निफ इब्न शैबा, इसकी 4थी जिल्द है, सफ़ा 461 है, हदीस नंबर है 37235। इसके अलावा किताब का नाम है मुस्नद फिरदौस,
اس کے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 39 ہے، حدیث نمبر ہے 2285، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ علمی بات سمجھ آتی ہے؟ کوئی علمی نقطہ، کوئی علمی بات ہو تو سبحان اللہ کہہ دیا کریں، اونچا کہیں سبحان اللہ۔ حوالہ نمبر 4 سماعت فرمائے، مسند بزار کتاب کا نام ہے، اس کے جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 234 ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا کہ 61 ہجری سے پناہ مانگنا، کیا کہ ظالم ظلم کریں گے میری اولاد پر، ظالم ظلم کریں گے میرے حسین پر، میرے حسین کو شہید بے دردی سے کر دیا جائے گا۔ امام علی مقام نے فرمایا لوگوں میرے پیارے کا ساتھ دینا، میرے حسین کا ساتھ دینا، جو جو حسینی ہوگا میں محمد اس کو جنتی بنا دوں گا۔ اونچا کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اب میدان کربلا کے اندر خطبات ارشاد فرمائے جا رہے ہیں۔ امام علی مقام نے جب اپنا خطبہ دے دیا، اس وقت امام علی مقام نے خطبات بھی دیے، اپنی کرامتوں کا بھی اظہار فرمایا۔ امام علی مقام کی کرامتوں کا اظہار آپ نے ان کو پہلے خطبات ارشاد فرمائے۔ ایک ایسا بدبخت جس کا نام مالک بن عروہ ہے، آپ کی کرامتیں آپ نے ہر چیز دکھائی، تقریر بھی سنائی، خطبہ بھی سنایا، تعارف بھی سنایا۔ ہو سکتا ہے ان کی آنکھوں کے آگے سے پردہ ہٹ جائے، لیکن بدبختی تھی نا، ایک بدبخت تھا جب روشنی کے لیے آگ جلائی جا رہی تھی نا، تو ایک بندہ بدبخت مالک بن عروہ کہنے لگا کہ اے حسین معاذ اللہ کہ تم نے اپنے لیے یہیں پہ آگ لگا دی، اپنے لیے آگ کا یہیں پہ تم نے اہتمام کر دیا۔ اس بدبخت کے کہنے کا مطلب یہ تھا۔ اب امام علی مقام کی